तो मैं बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक इस सर्विस को जो इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं इस चीज को वैलिडेट करता रहूंगा धीरे धीरे, बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगे, उनसे आप मैं लर्न करता रहूंगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं एक ऐप बनाऊंगा। अगर मुझे वैन्स खरीदनी होगी तो मैं वैन्स खरीदूंगा, ड्राइवर हायर करने होंगे तो वो हायर करूंगा। बट इट्स गोइंग टू बी एन इटरेटिव प्रोसेस रेदर देन जस्ट लाइक कहीं से पैसा लेके आए और जो है वो सारी जायदाद जो है उसमें लगा दी। ओके, ना पैसा की बात कर रहे हो तो पैसे की बात कर ही लेते हैं। Welcome, Sapiens. Welcome to another Homo Sapien podcast. Just another episode with Amir Kutub today. And he's a mechanical engineer and entrepreneur, being a part of various different types of industries, taking from sports, environment, technology, and a couple of more. Seemed like a really interesting journey to me from AMU to Geelong. So let's start with it. Thank you so much, Amir, for being here. Oh, thanks a lot for inviting me to your podcast. I'm a big fan of yours. Oh, really? That comes like, really surprising to me. Is it like, or is it a pet answer? I'm just kidding. No, definitely. No, I've listened to your content. Your content is absolutely amazing. Okay. And I think even your niche and the way you interact with people is absolutely amazing. I'm impressed. I'm so happy with my okay, thank you so much. Okay, so I want to start with practical. So this is something that we have always started. I don't want to waste like if someone wants to just listen to this podcast for let's say 10 minutes or 5 minutes, what practical things that he or she can take from this conversation? तो पहले 5-10 मिनट में और जितना भी लंबा किस्ता भी talk about practical things. And as you have turned from a normal Indian engineer guy and then going abroad, then turning into an entrepreneur, going through all of that journey. तो अगर किसी को entrepreneurship में, like if someone wants to start his entrepreneurship journey, what are the things that he can or she can learn from your journey? वो कौन सी चीजें होती हैं जो directly practically implement हो सकती हैं? Like if I want to start tomorrow, let's say. Absolutely. Right. So I think I've been into different ventures. My first two ventures failed drastically. फिर ये Enterprise Monkey was my third venture. और it took me around 2 years to like bring it to an established position. Even जब established भी हो गया था तो third year में I faced a lot of problems and challenges. So the very first thing that I want anyone to take away as a wannabe or as a person who wants to be an entrepreneur is that's not an easy journey. मतलब हम लोग we listen to all of these stories about all the success stories and rags to riches, but the fact is that it's a lot of hard work, lots of persistence, and a lot of patience. So that has been like a huge learning for me. And one thing that I've learned through my entrepreneurship journey is that it's all about solving the problems. So a lot of people see कि अरे ये कंपनी जो है वो अच्छा बिजनेस कर रही है, क्यों ना मैं भी स्टार्ट करूं. लाइक उबर को देख के हर कोई सोचता है कि मैं भी एक राइड शेयरिंग ऐप बना दूं या एक फूड डिलीवरी ऐप बना दूं. What you have to do is you have to identify a problem, an actual problem, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो अपने वेंचर के थ्रू, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो. और फिर उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि आपके कस्टमर्स कौन है. rather than thinking everyone is your customer, everyone cannot be your customer. You have to really identify who are your core customers, and then you develop your product from there. Now, one of the biggest mistake that I have seen with a lot of startups is कि वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे मेरे पास ये बहुत अमेजिंग आइडिया है, इट्स अ $1 million आइडिया, और वो उसमें बहुत सारी एनर्जी और अपना टाइम स्पेंड करते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, 1 साल 2 साल लगा देते हैं. And when they push it out in the market, it fails. The reason is कि वो लोग rather than developing it for the customers, they develop it rather than developing it with the customers, they develop it for the customers. They think कि मुझे जो लग रहा है वही सही है और मैं उसी हिसाब से प्रोडक्ट को या अपने स्टार्टअप को डेवलप करूंगा. बट द फैक्ट इज कि आपको नहीं पता कि मार्केट को क्या चाहिए. आपको क्या करना है, एक बहुत सिंपल सा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना है और उसको मार्केट में टेस्ट करना है. मार्केट के फीडबैक से, कस्टमर के फीडबैक से आपको उसको प्रोडक्ट को इटरेटिवली जो है वो एक्सपैंड करना है और फिर मार्केट में जो है वो लॉन्च करना है. So that has been like one of the biggest learning for me in the entrepreneurial journey. That's amazing. So you're saying before going all in, you need to test it out. Or test कैसे करना है? Like there are different ways. But
let's talk about, like, because you have been into part of like a product based and a services, both of the industries, like Absolutely. you have both of the experience. So अगर किसी को start करना, let's say a service based model or a product based model, how he or she should be going out. I know like there is no certain path, सब किसी का भी कोई भी जर्नी सेम नहीं रहेगा, बट ऑफ कोर्स Right. जो दो फेलियर से कुछ जो हमने सीखा है वो हम लोग बता सकते हैं, like you can tell. And the other part is like what are the step by step process to actually test that out, MVP वाला चीज है. एब्सोल्युटली. तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे दिमाग में ये आइडिया आता है, हमने प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारे एरिया में लॉन्ड्री क्लीनिंग के लिए जो है कोई ऐसा प्रॉपर जो है सिस्टम नहीं है, तो क्यों ना एक स्टार्टअप या एक सर्विस कंपनी जो है वो बनाई जाए कि जिसमें लोग अपनी लॉन्ड्री पिकअप और जो है वो बुक करवा पाए, और एक डिलीवरी वैन जाए, उनकी लॉन्ड्री को उठा के ले जाए और क्लोथ को जो है वॉश कर पाए. तो रेदर देन कि मैं पूरी टीम को हायर करूं और एक लॉन्ड्री सिस्टम जो है डेवलप करूं, एक ऐप डेवलप करूं, rather than doing all of that, the very first thing that I will do is I will send out a survey. एक बहुत सिंपल सा जो है वो सर्वे या गूगल फॉर्म जो है मैं बनाऊंगा, और वहाँ के रेजिडेंट से जाके बात करूंगा, या तो वन ऑन वन बात करूंगा या उनको भेजूंगा और पूछूंगा कि इफ आई लॉन्च अ सर्विस लाइक दिस, वुड यू बी इंटरेस्टेड. मैं पूछूंगा कि आपके कितने क्लोथ्स जो है वो हफ्ते में जाते हैं. इट्स लाइक अ बेसिक मार्केट रिसर्च. वहां से मैं स्टार्ट करूंगा. बट ऑल्सो रेदर देन डेवलपिंग, जब मैंने वैलिडेट कर लिया कि हाँ इसकी लोगों को जरूरत है, तो रेदर देन डेवलपिंग द फुल सिस्टम, मैं किसी एग्जिस्टिंग लॉन्ड्री सिस्टम से बात करूंगा, एक चैनल पार्टनर जो है वो डेवलप करूंगा, और फिर उसके बाद उनसे बोलूंगा कि ये एक बेसिक सा गूगल फॉर्म है या ये एक व्हाट्सएप सा ग्रुप है, आप इसमें अपने ऑर्डर्स को जो है वो भेजें. और डिलीवरी के लिए भी मैं ऐसा नहीं करूंगा एक पूरी वैन खरीद लूंगा, मैं किसी थर्ड पार्टी Nice. कॉन्टैक्ट करूंगा और वो मेरे लिए जो है वो डिलीवरी करके देंगे. इससे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2-3 बिजनेस मॉडल जो है और उसके कंपोनेंट्स हैं उनको टेस्ट कर रहा हूँ. तो मैं बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ, एक इस सर्विस को जो इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ. जब मैं इस चीज को वैलिडेट करता रहूंगा धीरे धीरे, बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगे, उनसे आप मैं लर्न करता रहूंगा. फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं एक ऐप बनाऊंगा. अगर मुझे वैन्स खरीदनी होगी तो मैं वैन्स खरीदूंगा, ड्राइवर हायर करने होंगे तो वो हायर करूंगा. बट इट्स गोइंग टू बी एन इटरेटिव प्रोसेस रेदर देन जस्ट लाइक कहीं से पैसा लेके आए और जो है वो सारी जायदाद जो है उसमें लगा दी. Okay, now पैसा की बात कर रहे हो तो पैसे की बात कर ही लेते हैं. Let's start with that. So, you started your journey in entrepreneurship in terms of like जब पैसा, I'm not really sure what is it. I'm coming to your story later on, but so with a lot of cash or like without cash, like what was your situation back then? Like without cash at all. Like मैं that तो was सीधे like completely जो है वो bootstrap. एब्सोल्युटली, मतलब बूटस्ट्रैप क्या, और नेगेटिव में ही था मैं व्हेन आई स्टार्टेड. So it was a pretty bad cash flow situation. Okay, and like so, let's say someone, and most of us are in that situation. Let's say, like अगर India को आगे लेके जाना है, तो like we have to keep like that thing away from our mind कि बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता. You can start always somewhere down. Absolutely. So anything from, because you have been in that thing, so वहीं से आए तो. Absolutely. So basically what I did with my business was I started with a service based business, like एक technology consulting business जो है मैंने start किया, जिसमें initial investment entry के लिए जो है वो बहुत कम है. मुझे जो है कोई staff जो है वो initially नहीं रखना था, कोई machines नहीं खरीदनी थी, कोई product नहीं बनाना था. What I had to do was I had to produce services, provide services. तो मैंने एक बहुत basic सी website बनाई, थोड़ा सा जो है वो लोगों में spend किया, एक basic जो है वो brand develop किया. And then I started talking to clients. और मैंने अपने सर्विस बिजनेस को बेस बनाया अपने बाकी सारे बिजनेसेस को एक्सपेंड करने. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इस बिजनेस को ग्रो किया विद अ वेरी 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 लो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें क्या था, इट्स अ पॉजिटिव कैश फ्लो बिजनेस, जिसमें जब भी मुझे क्लाइंट मिलेगा, क्लाइंट मुझे एडवांस में 50% पैसा देगा, फिर उसके बाद मैं उसका प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करूंगा, और इस हिसाब से मैंने अपने बिजनेस को ग्रो किया. तो ये मेरा सर्विस बिजनेस जो है वो मेरी बैकबोन बन गया एक तरीके से अब तो. और इसमें मुझे कभी फंड्स जो है वो रेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी. और इस बिजनेस को यूज करके अब मैं जो प्रोडक्ट्स भी बनाता हूँ, बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी करता हूँ. बट ये क्या है, एक तरीके से मेरे लिए बैकबोन बन गया. तो वैसे मुझसे कई बार जो नए एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं कि मुझे स्टार्ट करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ. तो वेरी फर्स्ट थिंग स्टार्ट इज कि तुम बेसिक फ्रीलांसिंग से स्टार्ट कर सकते हो. गो टू fiverr.com, go to upwork.com, start by earning money through basic consulting jobs or freelancing jobs.
इससे क्या होगा, आपकी एक बेसिक इनकम जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी और आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैं अपने आप कैसे फीड करूंगा या अपनी फैमिली को कैसे फीड करूंगा। बस यू हैव टेकन केयर ऑफ दैट, देन उसके बाद आप किसी स्टार्टअप में जो जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, उसको आप जो है वो धीरे धीरे बूटस्ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप उसको अप्रोच कर सकते हैं और जब सही टाइम आए तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी रेज कर सकते हैं। लेकिन हर बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट रेज करना जो है वो जरूरी नहीं होता। हाँ, कुछ बिजनेसेस जो है वो बहुत कैपिटल हैवी होते हैं और वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है।